वेलकम ऑल। सभी को जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। This is a happy day for all of us as our beloved Lord Krishna, whom we depict many a times through our dance, was born today. So greetings on this occasion as I pray to Lord to bestow happiness, health and peace in everyone's life. Welcome all on the second day of Nataraj Pandit Gopi Krishna Jayanti Mahotsav. This is the 75th year of Indian independence. This year has not only seen a nation grow, but also has helped to nurture our culture very consciously, which was under a foreign envelope for over 200 years. With independence, we as Indians took upon ourselves to nurture and cherish what was culturally ours. As every culture undergoes tradition, ours has too. But now we see a strong effort to also understand its origins and hold on to its roots as we move ahead in the modern era to further develop, even create our own. To take a relook at the journey of Kathak in the last 7 decades, we have a panel here today. This panel will indulge in a meaningful discussions as experts have questions and have them answered in same expertise. In the earlier times, the learned used to indulge in the Shastras, that a challenge of question and answers among the experts. Today, we present a Shastra on Kathak. It is not only a challenge to anyone, it is rather a discussion to explore the journey of Kathak in last 75 years. To engage in this Shastra, I call upon the stalwarts, none of whom need any special introduction, for they are not the names, but the institution in themselves, who have immensely contributed to Kathak. Today, we have with us Pandita Srimati Shamatai Bhatteji, a Kathak maestro who over the 50 years has worked in the field, bringing about the confluence of the tradition and the modern. A graceful dancer, choreographer who enriches Kathak with her creative thought. Secondly, we have an exponent of Jaipur Gharana, Pandita Srimati Umaji Dogra. She has been instrumental in popularizing and creating a place for Kathak through her Jaipur Gharana. Pandita Srimati Nalini Didi ji, Pandita Srimati Kamalini Didi ji are an example of life devoted to Kathak. They have been working to preserve the tradition of Kathak and at the same time look into the academics as well as the performance aspect in the specialized era through the renowned institutions of Kathak Kendra and Sangeet Natak Academy, Delhi, where they represent. And Pandita Srimati Rekhatai Nadgoda is a name synonymous to Kathak. She has immensely contributed in creating love, devotion for this art form by pouring her soul into it. I am immensely honored to call upon these luminaries who are not only the dancers but selfless gurus who have nurtured the parampara of Kathak and have passed it on to my generation. I hand over this session to my guru Aditi Nadgoda Panse, a very accomplished dancer, teacher, choreographer. She is a perfect blend of the old and the new, who is carrying the traditions of Kathak into the new era. Over to you, Aditi Tai. थैंक यू सो मच शुभलक्ष्मी। आप सभी गुरुजनों को आदर पूर्वक प्रणाम करके और आपकी इजाजत लेके आज का ये सेशन हम चालू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम 75th ईयर इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो मुझे एज अ कथक डांसर कुछ सवाल मन में आए काफी दिनों से, तो इसलिए ये पैनल डिस्कशन की आइडिया दिमाग में आई। सबसे पहला मेरा सवाल ये है आप गुरुजनों से कि कथक लोगों की नजरों में इन पिछले 75 सालों में कैसे बदला? कथक एज अ डांस फॉर्म को ये इंडिपेंडेंस ने क्या दिया और एक कथक आर्टिस्ट के जीवन में ये 75 साल के इंडिपेंडेंस का क्या बदलाव हुआ इन अ पॉजिटिव वे और मे बी सम नेगेटिव फैक्टर्स आल्सो। तो शमाताई, हम आपसे चालू करना चाहेंगे। सबको नमस्कार। उमा जी नमस्कार, रेखा नमस्कार, कमलिनी जी, नलिनी जी नमस्कार। आई फील वेरी ऑनर्ड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ मैं इस पैनल में शामिल हूँ और ये मैं
बहुत सालों से इसके बारे में सोचती आई हूँ। आई एम नॉट 75 बट आई एम नियरिंग इट। तो मैं सोचती हूँ कि मैंने 6 दशक तो डांस जरूर देखा भी है, नाचा भी है और अनुभव किया है। तो मैं एक जनरल जो मेरा इम्प्रेशन है वो पहले बताना चाहूंगी कि मुझे लगता है हमेशा की परंपरा और बदलाव, ये दो एक गाड़ी के ही पहिए है। पर बदलाव नहीं तो परंपरा नहीं, और सिर्फ बदलाव हो तो परंपरा ही नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए मुझे ये बहुत, जो आज का टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट लगा। अभी 75 इयर्स का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो हर फील्ड में लोग पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, और लोगों की नजरों में हमने क्या पाया और हमारे खुद की नजर में हमने क्या पाया। तो मुझे एक आपको मैं याद बताना चाह रही हूँ। 68-69 की बात बता रही हूँ, बहुत पुरानी बात है। मुझे लगता है कि शायद आप में से किसी ने सिर्फ सुना ही होगा। That was the first Kathak seminar in Jaipur, which happened in Jaipur, and almost सब लोग, जितने भी बड़े बड़े गुरुजन, सब लोग वहाँ थे। I was of course there as Rohini ji's पूछ स्टूडेंट। मैं उनके पीछे पीछे सब जगह जाती थी, वैसे ही वहाँ भी पहुँच गई थी। और रोहिणी जी एक्चुअली मेड इट अ पॉइंट कि आप लोग चलो और कथक का अनुभव करो। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि कि मैंने उस जमाने में शंभू महाराज जी, लक्ष्मण महाराज जी, सुंदर प्रसाद जी, गौरी शंकर जी, ऑफ कोर्स बिरजू महाराज जी, कोई नाम मैं शायद भूल रही हूँ तो माफ कीजिए, बहुत अरसा हो गया, मगर करीब करीब सबकी बातें सुनी, सबका डांस देखा। और रोहिणी जी उन्होंने कहा था कि नोट्स ले लो। तो अभी मेरे पास उस जमाने के नोट्स है कि मुझे किनका डांस कैसे लगा था। ऑफ कोर्स बचपना भी था, और जैसे बचपन में सब लोग ओपिनियनेटेड होते हैं, तुरंत बोल देते हैं अपनी बात। वैसे मैं लिखती थी, मैं बोलती नहीं थी, लिखती थी। तो मैं वो सबको नोट्स देती नहीं हूँ देखने, मगर कुछ कुछ सितारा जी थी, सुनैना जी थी, रानी करना जी थी, तो मतलब पूरे ही गैलेक्सी थी। तो मैं पूना की लड़की कमलिनी जी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि पूना की एकदम गांव में रहने वाली, मतलब सिटी में रहने वाली लड़की, और एकदम से ये पूरे हिंदी भाषिक लोगों में सब बुजुर्गों के पास पहुंच गई। तो एक तो मुझे मेरा मुंह एकदम ताला लगा था, बिल्कुल बंद था। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं गलत ना बात करूं, कोई गलत बात ना करूं, इसलिए मैं चुप थी। तो वो जमाना, इसलिए मैंने पहले छेड़ा कि अभी इतना बदल गया है कि बच्चे बात कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी अबाउट इट, आई एम नॉट ग्रजिंग, आई एम हैप्पी अबाउट इट। मगर इट्स द बदलाव, चेंज एटमोस्फियर, कि हम लोग अपने बच्चों से बातें भी करते हैं, हम चाहते हैं कि वो क्वेश्चंस पूछे। वो जमाना था कि आप चुप बैठते थे। कथक की बात करूं तो मुझे लगता है कि उस जमाने की मैं याद करती हूँ तो अभी कथक बहुत ग्रेसफुल हो गया। मुझे लगता है कि हर कोई कॉन्शियस हो गया है कि अपने हस्तक कैसे हो, अपनी गर्दन कैसे हो, अपनी नजर कैसे हो। एक चीज तो ये मोटा मोटी तौर से बोल रही हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि कथक ग्रेसफुल भी हो गया, और कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब बड़े स्मार्ट बच्चे हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब बहुत सुंदर लगता है। दूसरी चीज मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि लय ताल का काम भी उस, नॉट दैट उस जमाने में नहीं था, मगर एडवांस जरूर हो गया है। पैर, सबके पैर अच्छे चलने लगे। तो मुझे एक, जो विकास की भी एक बात थी क्वेश्चन में, तो इसको एडवांसमेंट बोले, विकास बोले, जब जहाँ तक एक्सप्रेशन या
भाव की बात है। Of course, I understand and of course I say that there is a lot to be done. मगर वो मुझे लगता है कि गियर पड़ गया है, चल रहा है। बहुत सारे लोग अलग अलग साहित्य में, उमा जी की बात करूं, मैं उमा शर्मा जी की बात करूं जिन्होंने गालिब किया था, मैं दमयंती जी की बात करूं, मैं अपने गुरुजी रोहिणी जी की बात करूं, उन्होंने रुचा संगीत, रुचा वैदिक रुचा पे काम किया था। मैं कुमुदिनी जी की बात करूं, उन्होंने कोट या दबकार में साहित्य यूज किया था। अभी हमारे जनरेशन वाले लोगों ने भी, शोभना जी ने भी किया है। हाँ, जो हमारे महाराष्ट्र में रहे, कुसुमाग्रज जी पे रेखा ने किया है। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग साहित्य पे भी काम किया है। नलिनी जी तो हमेशा शेर शायरी की बात करती है और वो काव्य से बहुत जुड़ी हुई है। तो मैं ये एक अच्छा बदलाव देखती हूँ कि एक जमाने में ज्यादातर बिंदादीन जी की ठुमरिया ही होती थी, अब अलग अलग काम भाव में भी हो रहा है। मैं परफॉर्मेंस के 1 मिनट में बात करती हूँ जिसमें मुझे थोड़ा गिला शिकवा भी है कि पहले खुला खुला डांस होता था। मुझे स्ट्रक्चराइजेशन में प्रॉब्लम नहीं, मगर उपज बंद हो गया, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। और उसकी मैं ये भी कारण समझती हूँ कि पहले 2 घंटा 2.5 घंटा हम लोग नाचते थे, अभी सब सिमट सिमट के 40 मिनट 20 मिनट हो गया। तो बच्चा बेचारा करना चाहे उपज तो भी कितना कर सकता है। ये एक मुझे बड़ी 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 ही असल में मुझे थोड़ा शिकवा है सोलो के लिए। कम से कम 1 घंटा तो हो, 50-60 मिनट्स तो हो, तो थोड़ा सा तो बात बन जाए, एटमॉस्फेयर बन जाए और अपनी बात कहने के लिए मौका मिले। ये बात। और एक मैं कहना चाहती हूँ, ऊपर से कोई ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं कि आज की ये थीम है इस फेस्टिवल की, तो और भी पाबंदी। फिर ये सब मुझे थोड़ा सा दुखदाई, एज अ सीनियर दुखदाई लगता है। हमें तो फ्रीडम थी, अभी थोड़ा बच्चे जैसे बंद गए हैं। तो ये मोटी मोटी चीजें मैं ये कह के खत्म करूंगी अभी अपनी बात। मैं कुछ कहूँ इस विषय में, जिससे जी, दो तीन लाइनों में ही बोलूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नमस्ते टू एवरीवन, शर्मा जी, रेखा जी, कमली, नलिनी जी एंड शर्मा जी। जैसे आपने कहा, तो ऑफ कोर्स बदलाव तो बहुत जरूरी है और परिवर्तन को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। मेरे हिसाब से एक बहुत सुंदर बदलाव हुआ है। तो जब आप तो 68 में आप गई थी, तो मैंने तो 69 में कथक केंद्र ज्वाइन किया था। उस वक्त मैं 9 साल की थी। उमा दीदी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपकी फंस आवाज गया नहीं, है, फंस। आपकी आवाज नहीं आ रही। तो हम इस बात को मानते हैं कि परंपरा से निकले हुए, खानदान से निकले हुए गुरुजन है। उमा जी, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या आदित्य? आई फील कि कमलिनी जी, नलिनी जी को बात करने दो एंड देन कम टू उमा जी, इफ यू डोंट माइंड। जी जी। कमलिनी दीदी, आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगी? Can you hear me? एक सेकेंड। अदिति, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ? अदिति का क्या प्रश्न है? Can you hear me? अभी अदिति एक बार रिपीट करेंगे आप प्रश्न को फिर से? जी दीदी, मैं एक बात पूरी कर लूं, 2 मिनट अपनी। हाँ जी, करो। बिल्कुल। बीच में आपका ऑडियो बंद हो गया था। हाँ, अभी हाँ ऑन हो जी, गया, हाँ। फोन आ जाता है। Can see many dancers. ऐसा नहीं है कि एक ही बस वो मास्टर हर प्रोग्राम में डांस कर रहे हैं, बाकी किसी को चांस नहीं मिल रहा। बट
बदलाव इतना सुंदर आया कि many people are getting stage, you know, many people are getting performances. It is not that कि वो एक top category या खानदान से निकले हुए लोग ही डांस करेंगे. And moreover, the beautiful things happen कि solist naturally ईश्वर सबको उतना नहीं देता है कि आप as soloist there are many who can become a मतलब ग्रुप में अच्छा डांस कर लें या डुएट अच्छा कर लें. So duets were introduced, groups were introduced, which is a wonderful thing. And all the people who have spent time and money for the art form, for the love for the art form, getting platform, because end of the day artist के लिए platform is very necessary. Performance is very necessary, whether the dancer is not of that high level. जितना भी उसको प्यार है उसको प्रदर्शन करने का मौका मिलता है आज के टाइम पे. That is a very beautiful thing happened in this 75 years. Thank you, Didi. Thank you so much. अदिति, आप क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करेंगे तो? जी, हम ये जो 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का हमारा जो है साल अभी चल रहा है, इन पिछले 75 सालों में कथक लोगों की नजरों में क्या बदलाव आया कथक को लेके, कथक एज अ डांस फॉर्म क्या उसमें बदलाव आए, क्या विकास हुआ, और एक कथक नर्तक के जीवन में क्या बदलाव आए और क्या विकास हुआ. बहुत कुछ तो शमा जी ने बहुत कुछ बोल दिया है, जो उमा जी ने भी बोल दिया है, पर उसको हटके कुछ जो मेरी दृष्टिकोण में जो मैंने अनुभव किया है वो ये है, पहले जब हम सीखते थे, सीखने से शुरू करते हैं तो हमारे पास उतने साधन नहीं होते थे जैसे आजकल लोग रिकॉर्डिंग करके ले जाते हैं. हम जो कुछ सीखते थे वो सानिध्य में ही सीखते थे और उसको हम अपने अंदर उतारते थे. और उसके जो जिसे कहते हैं ना लेवल ऑफ सर्टिफिकेट जो होता था वो होता था जब गुरु कह दे कि हाँ ये सही है या आसपास पहुंच गए हो. और उसका हम निरंतर अभ्यास करते थे. जैसे एक तिग्धा दिग्दिग भी सीखा है ना, एड़ी का भी सीखा, वैसा भी सीखा, दोनों पाँव का भी सीखा, खड़े पाँव का भी सीखा. हर तरह को सीखने के बाद वो जब तक नहीं कहते थे सही है. अभी क्या है, हम उस गुरु के उसका क्या वो अनुभव करके बोलते हैं उसका इंतजार नहीं करते, एक भीड़ में सीख लेते हैं. पहले सानिध्य में जब सीखते थे तो गिने चुने स्टूडेंट्स होते थे. एकेडमिकली इतना एक्सेप्टेंस नहीं थी और नहीं के बराबर ही थी. तो जो कुछ भी होता था वो गुरु का ही जो हमें मिलता था वही फीडबैक होता था, यस और नो. बहुत सी चीजें होती थी जो हम तैयार करते थे. अभी भी बहुत जैसे गो डाउन कहते हैं ना, वो अपने पास सबक का है, लेकिन प्रेजेंटेशन करने के लिए जैसे शमा जी ने बोला ना थोड़ा समय मिलता है तो दैट कम्स आउट लाइक ए शोकेस, थोड़ा सा ही प्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू थीम्स एंड ऑल. पहले क्या होता था, जो हम अभ्यास करके सीखते थे अपनी इच्छा से, और वो सिर्फ वही कलात्मक पक्ष होता था जो नृत्य से संबंधित होता था. वही हम जाके, कोई हमसे ऐसे डिमांड नहीं करता था कि फरमाइशी परण है, ये जो हम सीखते थे वही श्रोता हमसे चाहते थे. नृत्य का ही साहित्य, नृत्य का ही ताल, नृत्य जैसे सब कुछ नृत्य का फरमाइश में रहता था. अभी क्या होता है, जैसे आप थीमेटिक जाते हैं, अभी एनवायरनमेंट के ऊपर चाहिए, अभी कोरोना के ऊपर करिए, अभी इसके ऊपर करिए. तो ऐसी चीज को हमें पहले से प्रिपेयर करना होता है और इन्वॉल्वमेंट ऑफ सो मेनी पीपल होता है. जैसे शमा जी कह रही थी उस समय आप उमा जी के गुरुजी देवू जी और उनके ब्रदर दोनों डुएट करते थे. डुएट का भी बहुत चलन था और अच्छा लगता था, और उसमें वो अपनी तरफ से क्या योगदान दे सकते थे, अच्छा लगता था और बराबर का चलता था. अभी क्या है, जब डुएट भी उसमें सामंजस्य होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन परफेक्शन होता था. लेकिन अभी जो लोग करते हैं वो क्या, एक ने कर लिया, उसका आधा दूसरे ने बांट लिया, कर लिया, तो मतलब एक कंप्लीट सबक एक के पास नहीं होता. अगर एक नहीं करे तो दूसरा अधूरा होता है. तीसरी बात बहुत जो फर्क हुई, जो हम लोग बैले में सीखते थे वो एक अलग सबक होता था, जो नृत्य में सीखते थे. अभी लोग क्या होता है, कंपोजिशन सीखते हैं, उसमें से निकाल के उसमें डाल देते हैं अपने सोलो में या किसी परफॉर्मेंस में. वो चाहे जेब खाए या ना खाए वो करते हैं और आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते. पहले जो मापदंड होता था वो कोई गुरु भी किसी को टोक सकता था आके कि हाँ भैया अच्छा लगा नहीं, एक दूसरे को सराहते थे, आपकी ये बात अच्छी लगी और एक्सेप्ट करते थे. एक दूसरे के बोलने को भी टोकते थे. मुझे याद है मैंने एक बार शमा जी के प्रोग्राम में भी बोला था, आदरणीय रोहिणी जी और दमयंती जोशी जी हमारे गुरुजी और बहुत सारे लोग जयपुर में इकट्ठे हुए, तो कुछ बात चल रही थी, बोला
तो बीच में दमयंती जी ने किसी बात को टोका, फिर गुरुजी ने कुछ बोला, लेकिन जब हम गाड़ी में लौट के आ रहे थे तो मैं और कमलनी जी बीच में बैठे थे। हम क्योंकि छोटे थे तो हमारी कोई उतना अस्तित्व नहीं था, और वो लोग साइड में दोनों विंडो के साइड बैठे थे, या कमलनी आगे, मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो वो जो डिस्कस कर रही थी वो ये सोच के नहीं कर रही थी कि वो मेरे गुरुजी के लिए बोल रही है या किसी के लिए बोल रही, वो कर रही थी जो मैं जवाब दे रही थी उसको पूरा पूरा सुन रही थी, और मैं भी उनके साथ आदर में ही बात कर रही थी। तो हमारे अंदर जो गुरु से सीखा तो उसका एक निडरपन था। आजकल किसी से कहते हैं तो वो पूर्ण संपन्न नहीं होते हैं अपनी शिक्षा में, तो उनको ये पता नहीं होता कि जो शास्त्रार्थ को वो एक्सेप्ट करते थे, सोचते हैं बहस कर रहे हैं। दैट इज नॉट बहस, that is shastra to enlighten yourself to know about more from the elder gurus. अच्छा, और गुरु लोग ना कि जो लोग हम लोग जैसे घरानेदार नहीं होके भी उसको एक्सेप्ट किए हुए थे, उस चीज को भी बहुत अप्रिशिएट करते थे कि आप करें, लेकिन प्रमुखता जो मंच होता था वो घरानेदार लोगों को ही मिलता था, और उन्हीं का उसमें एक पकड़ थी। है अभी क्या है, आपको एक वास्ट रूप मिल गया है जिसमें आप सब लोग उसको कर सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी है उस क्वांटिटी बढ़ जाने से उसमें थोड़ा फर्क आया है, क्योंकि आप इतने लोगों को चेक नहीं कर सकते हैं, और वो लोग जो सीखते हैं उसमें से कहाँ से वो नेट से उठा लेते हैं, कहाँ वीडियो से उठा लेते हैं, कहाँ अपना कुछ बना लेते हैं, उसमें अगर आप टोकते हैं तो उनको लगता है कि आप उनके जो मानसिक विकास है उसको रोक रहे हैं। हम लोग के साथ अगर वो कह देते थे नहीं ये ऐसा नहीं है या ऐसा ही है, तो हम लोग सिर्फ सीखने में लगे रहते थे। जो खजाना उनको परंपरा से मिला है पहले हमें वो मिल जाए, फिर उसमें अपना दखल दें। पर आजकल के और जब कुछ कहना भी होता था तो डर के कहते थे कि ऐसा है, ये है, फलाना आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। तो वो अच्छा, हम 4 आइटम भी तैयार करके गए, और मंच में पहले उन्हीं के गुरुजी के नाम से ही बुकिंग होती थी, हमारा कोई ऐसा नाम से बुकिंग नहीं होती थी। हाँ, आइटम होता था, और नहीं भी नाचने को मिले वो 2 आइटम, और एक भी मिल गया या कुछ भी नहीं मिला तो भी हम कुछ नहीं कहते थे, जाके अपना मतलब बहुत सहन शक्ति थी। और शिष्य जो होता था ना पूरा डिवोटेड होता था। देयर इज नॉट टू क्वेश्चन फ्रॉम द गुरु व्हाई वेयर, नथिंग लाइक दैट। और समर्पण भी दूसरे तरीके का था। जैसे मैं अपने गुरुजी के पास जाती थी, अभी वो साइंस स्टूडेंट, तो स्कूल से ही होता था, तो हमारे क्लास के बॉयज सोचते थे स्कूल बस में मॉर्निंग में आ रहे हैं, शाम को स्पोर्ट्स के लिए रुके हैं, फिर ये किसी दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं। तो कई बार वो बॉयज स्ट्रेस करते थे कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं, तो फिर हम उनको बताएं तो उनको समझ में नहीं आता गुरु का मतलब क्या होता है। पर हमने भी नहीं सोचा था कि गुरु का मतलब क्या है, लेकिन धीरे धीरे वो परंपरा देख के सानिध्य में हमारे अंदर आई। और क्या होता था कि जैसे हम गुरुजी के पास गए, उस दिन वो कुछ कंपोजिशन कर रहे हैं, हम बहुत देर तक बैठे भी रहे और म्यूजिशियंस लगे, तो हम वही सुनते रहते थे। हमने कभी भी नहीं कहा कि आज आपने हमें नहीं सिखाया। ऐसे हफ्ते हफ्ते भर भी हो जाता था। और ऐसा भी होता था, एक बार मुझे याद है खूब बारिश हो रही थी और मेरे एग्जाम के दिन थे, तो मम्मी पापा ने मना किया था कहीं नहीं जाना। मैंने झूठ बोला कि मुझे डिस्पेंसरी जाना, मैंने कार्ड उठाया और मैं बस में 45E RK पुरम से जाती थी, बैठ गई। और जब तक वहां पहुंचू खूब बादल उमड़ आए थे और इतनी तेज बारिश हुई कि घुटने तक पानी हो गया। सड़क के उस पार जहां हम रियाज करते थे वो जगह थी और सड़क के इस बार मैं थी। तो एक व्यक्ति मुझसे कहता मेरे साइकिल में बैठ जाओ, मैं आपको उस तरफ तक ले जाऊंगा। लेकिन मेरी मेंटेलिटी में कभी भी ये नहीं था कि मैं किसी की साइकिल में बैठूं और उधर जाऊं। फिर मैंने धीरे 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 किस तरीके से पार करके उधर गई। मैं आधे से ज्यादा भीग गई थी, लेकिन गुरुजी के पास गई, कुछ सीखा नहीं, सिर्फ प्रणाम करा, उनकी शक्ल। तो हमारा एक जो दूसरा, जैसे बोल दिया कि आज व्रत गुरुजी ने रखा तो हम भी व्रत रखते थे। मतलब वो सोचते थे किस तरीके से उनको अपने अंदर उतार सके, शायद उनको उसी रास्ते से कुछ मिला हो। मतलब और नकल की तो बात बिल्कुल ही नहीं रहती थी, लिखित भी नहीं होता था कि हम किसी चीज को लिखे उन्होंने क्या। और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे रहते थे कि ये ताल में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर वो बताते थे कि आपने सबक तो वो ले लिया लेकिन लय आपकी फर्क हो रही है, इसलिए वो ताल में नहीं आ रहा है। और उनके अंतर्गत जितने भी लोग आते थे उसको भी हम उतना ही नमन करते थे, चाहे वो म्यूजिशियंस हो कुछ हो। और दूसरी बात, चूंकि मतलब नलिनी जी का कहने का मतलब है जो हमारी शिक्षा होती थी, जबकि हम लोग गैर घरानेदार, मतलब हम लोग तो दिस इज नॉट अवर ट्रेडिशनल फैमिली वर्क, उसके बावजूद भी हमारी कोई टाइम बाइंडिंग नहीं थी। आप पढ़ रहे हैं तो आई विल कॉल यू लेटर। और अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसी में से टाइम निकालना है, चाहे जैसे भी निकालें, रात को पढ़ें, बस में पढ़ें, घर में पढ़ें, लाइब्रेरी में पढ़ें। तो हम लोग बस
बट प्रायोरिटी वाज डांस। ऐसा नहीं कहीं शादी हो रही है तो हम डांस में नहीं जाएंगे। आजकल के बच्चे ऐसे कहते हैं कि कहीं फंक्शन में जाना है, फैमिली फंक्शन है, चले जाते हैं। हमने सच्ची बताऊं किसी भी चीज को इससे ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी। और मैं हमारे घर में इतने सर्वेंट्स होते थे, सबसे मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती थी, लेकिन खाना बनाना सब करना मैंने गुरुजी के सानिध्य में ही सीखा कि कलाकार लोग तो अच्छे खाने में शौकीन होते हैं, क्या चीज पसंद है, क्या करना है। तो मतलब एक व्यक्तित्व का निर्माण करता था गुरु। अभी गुरु को भी समय नहीं मिलता है कि वो शिष्य को कैसे। ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया कि गुरु से हम लोग सिर्फ उस जमाने में सिर्फ डांस की शिक्षा नहीं लेते थे, ऑल टुगेदर एक पूरे व्यक्तित्व को आपका गुरु तराशता था। और वो समय नहीं है। अच्छा, जब ऑर्गेनाइजर्स आके भी बात करते थे ना, तो भी हम सुनते थे कि किस तरह से डीलिंग हो रही है। मतलब उन्होंने कहा कितने लोग आएंगे, कैसे बैठेंगे, क्या क्या चाहिए, रहने का क्या इंतजाम है। तो हमारे को ना वो जो ट्रेनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग ऑफ द मैनेज, कितने लोग आएंगे, क्या कौन से ट्रेनिंग होती थी, कौन से कितने आएंगे, कैसे ठहरेंगे, क्या खाने का इंतजाम है, स्टेज में क्या क्या जरूरत है। तब लाइट और साउंड पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जो वो दे देते थे। हमने कभी भी माइक सेट नहीं किया था कि और पीली लाइट में नाचते थे। पीली लाइट होती थी मुझे हमें याद है, हम लोग पटना में अक्सर नृत्य हुआ करते थे और बहुत विशाल रूप में होते थे, पंडालों में होते थे और बड़े सारे कलाकार बुक होते थे और टाइम बाउंड नहीं था। 2 घंटे नाचो, 4 घंटे नाचो, जब तक फरमाइश हो, जब तक आपका मन करे नाचो। जिसका दीदी जिक्र कर रही हैं, मुझे याद है पटना में लंगटहोरी की कॉन्फ्रेंस थी, श्याम जी घनश्याम जी, उसकी इतना अभी भी प्रेस का वो कटिंग रखा है, श्याम जी घनश्याम जी, राम मराठे, साइद परवेश, परवीन सुल्ताना जी, बिस्मिल्लाह खां साहब, और हमारे साथ बिना अभ्यास के गुदई महाराज जी वहां से डायरेक्ट आए और वो गुरुजी के साथ बजाए थे। उनके साथ बजाया तो ठीक था, मेरे साथ बिना अभ्यास के मैं सोच नहीं सकती थी। पर हमें जिससे मंच पे ही बनता था, हमें उनसे कोई डर नहीं था। क्यों नहीं डर था? क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि वो बहुत बड़ी चीज है। बस तबला है ये, हम सोच के नाचते थे और इतना सबक बन जाता था कि, और वो भी फिर एक खुश होके 1 रुपया निकाल के दे रहे हैं, तो वो हमारा हौसला बढ़ाता था कि कैसे। फिर बिस्मिल्लाह खां साहब जी वहाँ रोटी बने होते थे, उसमें बैठे हुए गुरुजी से बोलते हैं, अरे 10 बजे शुरू किया, सुबह के 4 बज रहे, मेरे रोजा खत्म होने का समय। और वो भी मित्रता की तरह, अब तो खत्म कर दो भाई, मुझे भी तो समय दो। तो वो फिनिश हुआ, फिर उन्होंने प्रारंभ किया। अब कितनी देर चला वो उससे हमें कोई मतलब नहीं। फिर आने के बाद दूसरे ऑर्गेनाइजर लाइन लगाए खड़े हुए कमरे के बाहर, नॉन एयर कंडीशन, नॉन कूलर के साथ वो कमरे होते थे छोटे छोटे होटल में। लाइन कल हमारे यहाँ आ जाएगी, मतलब एक परफॉर्मेंस की बुकिंग में गए हैं और ऑर्गेनाइजर्स लाइन लगा के खड़े हैं। तो गुरुजी से आके पूछते हैं, एक वाक्य सुनाती हूँ कि आपको क्या देना होगा। अब गुरुजी भी ना अपनी कुमार में बिल्कुल थके हुए, मुंह चिपक रहा है सुबह, और वो एयर कंडीशन और कूलर कुछ नहीं, वो तो हमें पता ही नहीं था। वो हमें पता ही नहीं था कि हमने सोचा नहीं था हमें वो कभी ट्रेवल करने को मिलेगा या ऐसे रूम्स मिलेंगे, ऐसे होते भी ये नहीं सोचा था। तो गुरुजी ने कहा कि भैया जो कुछ भी दे दिए, हम तो यहाँ आए हुए हैं, हम आपसे के इतना दें, इतना ऐसे हाथ करके इतना दे, तो आपको, तो वो समझे कि इशारे में 10,000 कह रहे हैं। कहते नहीं 10,000 तो हम क्या 15,000 आपको देंगे। उस समय की बात कर रही हूँ, 78 लेट 70s की बात कर रही हूँ। इतना कहने से वो समझे 10,000। तो अदिति जी शेयर होता था, कलाकार कभी भी नहीं कहता था कि मुझे इतना चाहिए। बस उन्होंने बोल दिया जो हो जाए ये तैयारी चाहिए। मतलब हम लोगों ने कभी भी ये नहीं कोट करा कि हम इतने पैसे लेंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगी, जैसे नलिनी जी बता रही हैं, थोड़ी थोड़ी बात, वैसे तो मैं कम बोलती हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ, कि हम लोग ने गाना बजाना सीखना ये नहीं सिर्फ एक कमरे में सीखा। जैसे अभी चर्चा हो रही है, हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में अगर 3 दिन का सफर है, यहाँ से फर्स्ट क्लास का वो बंद कर लेते थे, कुपे बंद कर लिया, सारे म्यूजिशियन अंदर बैठे हैं। स्लीपर क्लास में तो भी क्योंकि 6-7 लोग होते थे, कुछ शर्म नहीं होती, तो सब शुरू हो जाते थे और एक मजमा सा लगता था ट्रेन में। तो सब गाना बजाना कर रहे हैं। अगर हम खंडवा जा रहे थे एक बार, तो हमारे गाड़ी में नसीर खान साहब बैठे थे डिब्बे में हाँ, और 2 डिब्बे छोड़ के यामिनी जी भी थी। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बिल्कुल हकीकत कह रही हूँ, स्लीपर क्लास थी वो, क्योंकि कोई इतना पैसे तो कोई देते ही नहीं थे। तो हम लोगों ने क्या करा, देख लो उसको, बोलो ना वो
खोल देगी दरवाजा। तो क्या हुआ, हम लोग गाना बजाना कर रहे थे, तो खबर हो गई कि एक डांस करने सब लोग आर्टिस्ट लोग जा रहे हैं। सब आ गए और सब लोग ने, कोई चाय स्पॉन्सर कर रहा है, कोई खाना दे रहा है, खाते पीते गाते बजाते जा रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उधर नसीर खान साहब है, वो भी उठ के आ गए। अब पानी, हम लोग क्या हुआ, हम लोगों को बड़ी प्यास लगी, हम उस डब्बे में चले गए और सुराही रखी थी, एक सुराही रखी हुई थी। तो हमने उनको बोला, अब्बा अब्बा हम इसमें से पानी पियेंगे। तो उनकी वाइफ कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, सुराही को मत छूना। हम जब छुए वो बार बार हाथ हटा दें। पता चला उन्होंने उस सुराही में बहुत सारी, वो बहुत पीते थे, तो उन्होंने उसमें वो अपनी शराब भर के रखी थी और वो किसी को दे नहीं रहे थे। तो दूसरी सुराही, जो सुराही लेके चलते थे ना अपन लोग पानी पीने के लिए, तो उसमें से लेते, मतलब वो भी टूट फूट जाती थी। फिर घुंघरू के डब्बे हम लोग खींचते थे, ऊपर रखते थे और सितार लटकाते थे, तो बड़ा मजा आता था। और गाना बजाना करते पता ही नहीं चलता था हम कहाँ पहुंच गए। और जब उतरे, कमलनी जी सुनो, ट्रैक से बाहर जा रहा है ये ट्रैक से बाहर की बात है, ये आएगी नहीं उसमें। अच्छा, कोई बात नहीं। 75 years of तो सुनो ना, 75 years में ये है कि पहले सब काम चलते फिरते होता था और कुछ उसमें रियाज का कुछ ऐसा होता नहीं था। अभी क्या है ना, घड़ी देखी और आपने कमरे में सोफिस्टिकेटेड तरीके से आए और उन्होंने सीखा और चले गए। तो कितना बड़ा फर्क है। कोरियोग्राफिक नंबर्स इतने नहीं होते थे क्योंकि हमारे मंच छोटा सा होता था या महफिल में होता था या लिमिटेड होता था, तो ज्यादा सोलो, डुएट, ट्रायो और कुछ ग्रुप में नृत्य हो जाता था। अभी इंटरनेशनली जब मंच वास्ट हुआ तो उसमें जो थीमेटिक प्रेजेंटेशन रहा, उसमें क्योंकि रिदमिक पैटर्न में आपको थोड़ी सी धार्मिक चीजें इंक्लूड नहीं करनी होती है, क्योंकि उस जितना करेंगे विदेश की ऑडियंस वो समझ नहीं पाएगा। दे नीड फास्ट नंबर, तराना हुआ, लयकारी हुई, जो चीज दूसरों को या इंटरनेशनल कोई प्रॉब्लम के ऊपर है, एनवायरनमेंट के ऊपर है, ऐसी कंपोजिशन आई, कॉस्ट्यूम्स में चेंज आए जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम से फर्क थे और अपीलिंग हो। दूसरी बात, लाइट और माइक का जो एक ऑडियो विजुअल का कॉम्बिनेशन हुआ, ये पहले बिल्कुल नहीं होता था। जबकि दूरदर्शन में भी एक सेट लग जाता था, वो सेट अगर हमारी बैले खत्म नहीं होता था तब तक वो ये परेशान होते थे पूरा टीम क्रू कि ये सेट तो हट जाएगा तो फिर ये किस तरीके से बैले की रिकॉर्डिंग। आजकल सब कंप्यूटराइज्ड है, वो उसको उसमें सेव कर लेते हैं, एक दिन की रिकॉर्डिंग 7 दिन बाद भी हो सकती है। लेकिन पहले हमें बिल्कुल टाइम लिमिट में उसे खत्म करना पड़ता था और ये होता था कि भाई बाउंड है, आप इस काम को खत्म करना ही करना है। सो जितना लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, कोरियोग्राफी हो गई, उतने में चीजें बटी तो सही, लेकिन जो स्टेमिना ऑफ परफॉर्मेंस पहले हुआ करता था और उसके नॉलेज को भी एलोबरेट करके प्रेजेंट करना होता था, वो अब आइटम्स में और कोऑर्डिनेशन में इतना बढ़ गया है कि अगर हमारा म्यूजिशियन नहीं होता है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि हाउ टू प्रेजेंट दैट थिंग। पहले खुलेआम आप जा रहे हो, तबले वाले को बुक कर लें, उस नगमे वाले को बुक कर लें, इस तरीके से म्यूजिशियंस बुक हो जाते थे। और साथ ला रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन उनकी बुकिंग जरूर होती है कि यहाँ फलाने महाराज जी तबले पे उस इलाके में माने जाते हैं तो आपको वही हम दे रहे हैं। तो फिर वहां जाके ये भी नहीं होता था थोड़ी देर 2 मिनट पहले देखो, सीधे मंच में जाके पहुंच गए। और जो अखाड़ा होता था, दंगल होता था, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और आप सीखी सिखाई चीज को नहीं करते थे तो आप भी बड़े पर्टिकुलर होते थे कि क्या हो रहा है, किस ताल में हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। जी हम आगे थोड़ा, क्योंकि मुझे काफी सवाल है, तो आगे मुझे एक सवाल आप गुरुजनों से पूछना है कि जिस काल में, जिस वक्त आप लोगों ने कथक को अपना ध्येय, आपका करियर, अपना धर्म बनाया, कथक इज लाइक इट्स लाइफ फॉर अस। तो जब आप गुरुजनों ने ये डिसीजन लिया, वो टाइम कैसे था? वो टाइम पे आपको क्या अड़चनें आई? What difficulties you have faced? And आज even if we are in 2021, आज भी जब एक कोई नर्तक, एक नर्तिका, एक लड़की, एक कथक नृत्यांगना जब ये डिसाइड करती है कि मुझे कथक को ही अपना जीवन बनाना है, तो आज भी उसे कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो 75 इयर्स हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को, बट कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि शायद नहीं बदली है।
तो उस विषय में आपका क्या ओपिनियन है? रेखा ताई, हम आपसे चालू करते हैं। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा ताई, आप म्यूट हो। नमस्ते, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये परिसंवाद आयोजित किया है। मैंने डांस तो बहुत पहले शुरू किया था नासिक में ही, और यानी कि 62 में मैंने डांस शुरू किया सीखना, और 69 में मैंने डिसीजन दिया कि मुझे लाइफ में सिर्फ डांस करना है। मतलब क्या है ये पता नहीं था, लेकिन डांस तो करना है, और इसलिए मैं नटराज पंडित गोपी कृष्ण जी के पास चली गई। 69 में नासिक एक बहुत छोटा गांव ही था, शहर भी नहीं, गांव ही था। और मेरी आई और बाबा ने मुझे ना नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आपको जो सीखना है सीखो, जाना है बम्बई, हम आपके साथ आएंगे, आपकी व्यवस्था कराएंगे, और आप सीखना चाहते हैं तो सीखो, और पहले जो फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट करना। आई बाबा का इतना सपोर्ट था उस टाइम कि बाद में, बहुत बाद, यानी 30 इयर्स के बाद मुझे उन्होंने कहा कि उस टाइम उन्होंने क्या क्या फेस किया, लोगों को उन्होंने क्या क्या जवाब दिया। तो मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने जो समाज में चल रहा था कि ये लड़की क्यों सीख रही है, पैर में घुंघरू बांध के क्या लाइफ बनेगी क्या, बाद में तो 18 साल के बाद तो शादी करनी है, शादी के बाद क्या है तो बच्चे पैदा करने हैं, इस तरह के। तो उन्होंने वो बात मेरे तक पहुंचा ही नहीं, और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत खुले दिल से वहां सीख पाई। और एक बात बताऊं अदिति जी, कि मैंने जब डांस सीखा तो उस टाइम, आज के जमाने में जैसे बच्चे सोचते हैं ना कि डांस मेरी करियर बनेगी, तो करियर का मतलब योग क्या समझते मुझे पता नहीं, लेकिन ये डांस अपने आप मेरी करियर बनी। यानी इतना प्यार मैंने डांस पे किया, और इतना अच्छी तरह से सीखा, और आज तक भी मैं सीखना ही चाहती हूँ, क्योंकि इस प्रभाव में रहने के लिए हमेशा फ्रेश रहना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डांस एज अ करियर मैंने चूज नहीं किया, मुझे बहुत डांस करना था, और डांस पे जो प्यार मैंने किया और जिस ढंग से वो डांस मुझे सिखाना था, स्टेज पे परफॉर्म करना था, उससे ये मेरा करियर बन गया। और भी एक बात है कि मैंने शादी का जब सोचा, तब मैंने यही सोचा था कि जो मुझे लाइफ टाइम डांस करने देगा उसी से मैं शादी करूँ। और उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा कि उसकी सैलरी क्या होगी, उसका मुझे 4 व्हीलर मिलेगी या 2 व्हीलर मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये कुछ नहीं सोचा। मैंने सोचा कि मुझे डांस करने देगा, बस खत्म बात, और कुछ नहीं मुझे सोचना है। आजकल के मुझे ऐसे लगता है कि लड़कियां ऐसे नहीं सोचती है, उनको सब चाहिए और डांस भी चाहिए। तो मैंने वो नहीं सोचा, तो इसलिए मेरी करियर अपने आप बन गई, ऐसे मैं समझती हूँ। मालूम नहीं कि हर एक का यही मत होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरी तो करियर अपने आप बन गई है। मैंने सोचा कि मैं नासिक में ही रहूंगी, जहाँ पे मैंने बचपन में डांस सीखा है, वहीं पे रह के मैं डांस बढ़ाऊंगी। और बात यह है कि मैंने शादी के लिए भी यही सोचा था कि मुझे जो डांस करने देगा, कभी किसी भी चीज को ना नहीं बोलेंगे डांस के लिए, बस उनके साथ मुझे जिंदगी गुजारनी है। और इसलिए जिंदगी भी अच्छी गुजरी, फैमिली भी अच्छी हुई, और डांस भी अच्छा हुआ। मुझे ऐसे लगता है कि इतनी तकलीफें मुझे नहीं आई। मैं भी छोटा गांव था, और मेरी आई बाबा ने जो भी चल रहा था वो मेरे तक नहीं पहुंचाने दिया, इसीलिए किसी के बारे में मुझे कुछ ग्रज नहीं हुआ। रेखा ताई, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि
इवन दो यू वर फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी, जबकि नासिक अब इतना छोटा रहा नहीं, जैसे आपने देखा है बहुत छोटा नासिक देखा है, तो इतने छोटे गांव से भी कह सकते हैं हम, जब आपने नृत्य को आपका करियर करके, जैसे आपने कहा कि आपने कभी करियर इस फॉर्म में नहीं उससे स्वीकारा था, लेकिन वो जमाने में भी बिकॉज योर पेरेंट हैव बीन सपोर्टेड यू, आपके पेरेंट्स ने आपको काफी सपोर्ट किया, उस वजह से आप आपका ध्येय अकम्प्लिश कर पाई। या ये तो परफेक्ट है कि उमा दीदी, हम आपकी भी जर्नी सुनना चाहेंगे। जर्नी तो नहीं सुनाऊंगी, बट एज आई बिलोंग टू द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर डांस वाज नेवर टेकन एज ए रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, यू नो, आई स्टिल रिमेम्बर, जबकि डांस तो नहीं कहूंगी, द म्यूजिक में आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट मेरे घर में म्यूजिक बचपन से पैदा होने से मेरे घर पर, माय फादर वाज ए म्यूजिशियन, ही वाज ए सितार प्लेयर एंड ही वाज ए, और उस जमाने के म्यूजिशियन वी ऑल नो वो हर कला में माहिर होते, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठाते थे बजा लेते थे। सो माय फादर हैज लर्न, उमा शंकर जी जो शिव जी के फादर हैं उनसे उन्होंने तबला सीखा था, और he was a singer also, he was a professional sitar player at All India Radio. For me music was there in the family. और मेरे पिताजी के दोस्तों में रियासी से अल्लाह रखा खान साहब उनके जिगरी दोस्त, तो हमारे घर में चतुरलाल जी, अल्लाह रखा खान साहब, मैं तब पैदा नहीं थी, वी आर 8 ब्रदर्स एंड सिस्टर, काफी भाई बहन है, तो जब तक मेरा टाइम था मैंने चतुरलाल जी को भी नहीं देखा, बट पंडित अमरनाथ जी वगैरह इन सब लोगों को आते हुए घर पे देखा है बैठ के। और यहाँ पिताजी का एक कमरा होता था जिसमें सिर्फ गद्दों पे चांदनी बिछी होती थी, चांदनी बोलते हैं सफेद चादर को, तो हारमोनियम, सितार, तबला सब पड़ा रहता था। तो हमारे घर में गाना सीखना कंपलसरी था सबको, हारमोनियम बजाओ, गाना गाओ, ये सब। पर जब मैं सितार सीखना चाहती थी तो मेरे फादर ने मुझे नहीं सिखाया, क्योंकि मेरे से ऊपर जो बच्चे थे वो उसको अडॉप्ट, उन्होंने उसको नहीं लिया एज ए, उनका इंटरेस्ट नहीं था, तो मेरे पिताजी का इंटरेस्ट खत्म हुआ सिखाने से। So now I'm coming back to, I'm not talking about that journey, I'm talking about कि जब मैं बड़ी हुई, मैं गुरुजी से भी डांस सीख रही थी, तब एट दैट टाइम मेरी छोटी बहन जो थी, शी वाज गोइंग समवन, तो उसको शादी करनी थी, मेरे पे, और मेरे से बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, तो एक प्रेशर था। नॉर्थ में ये है कि अब मतलब सीरियल वाइज ये शादियां होंगी सबकी, तो उस जमाने में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था मैंने कि नहीं, इफ शी इज रेडी एंड शी हैज ए पार्टनर टू गो विद, लेट हर गेट मैरिड, आई एम नॉट राइट नाउ रेडी, आई वांट टू डू माय डांस। सो उस वक्त उस समाज में ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि छोटी बहन की शादी हो गई, बड़ी बहन कवारी है। ये नॉर्थ का एक बहुत बड़ा, मतलब कह लीजिए कि लड़की में कुछ कमी है कि लड़की, बड़ी बहन की शादी नहीं हुई। मेरे छोटे भाई की भी मैंने शादी करा दी, तुम भी जाओ, तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी है। तो मेरे घर में मैं और मेरा सबसे छोटा भाई थे। अब जब भी कोई रिश्ता आना नॉर्थ, क्योंकि दिल्ली में रहती थी, तो मान लीजिए करोल बाग का एक लड़का है, उसकी करोल बाग में एक दुकान है, आपको घर से डांस की फोटोग्राफ्स भी हटा देनी है जब वो देखने आएंगे। ऐसा सा माहौल दिल्ली में मतलब मैंने ऐसा फेस किया। और फिर कई ऐसे ऐसे रिश्ते भी आए मेरे पास में, लड़का बहुत अच्छा है, उनके घर में तो बेडरूम में, वेरी सॉरी टू से, बट अटैच्ड बाथरूम है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं अटैच्ड बाथरूम का, इफ दैट पर्सन इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मी एज ए डांसर। नहीं, उनकी मदर इन लॉ बीमार हैं, बड़ी कंजर्वेटिव। तो मैंने कम से कम, मैंने वेरी प्राउडली आई कैन से, आई हैव रिजेक्टेड 15 to 16 बॉयज हु वर वेरी वेल टू डू विद द बिजनेस एंड ऑल। मैंने कहा नहीं करूंगी शादी। और पर मेरे घर में ये मसला नहीं था कि आप डांस नहीं करेंगे। मेरे घर में मेरे को हमेशा मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, हम 8 भाई बहनों में आई एम द ओनली आर्टिस्ट इन माय फैमिली एंड माय फादर सपोर्टेड मी एंड ही रियली वांटेड कि मैं किसी ऐसे लड़के से शादी करूं जो म्यूजिशियन हो, जो कोई आर्टिस्ट हो। बट वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। बट माय हस्बैंड इज फ्रॉम द आर्ट फील्ड ओनली। But that time in Delhi was quite bad. In North, it was not acceptable कि लड़कियां अपने घर में, कोई बहू नहीं चाहता था जो कि डांसर हो। बट उस वक्त में मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन था। मेरे सारी बहनों की शादी 19 साल या 20 साल में हो गई।
मेरी शादी मैं 26.5 years old थी जब मेरी शादी हुई. That also with the matrimonial column से मैंने लड़के को खुद ढूंढा और एक ये शर्त रखी, तुम्हारे पास पैसा है, नौकरी है, नहीं है, मुझे को उससे कोई लेना देना नहीं है. मैं अपनी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी चला सकती हूँ, बट मेरा डांस मेरे को बरकरार रखना है. एंड वेरी लकी दैट आई गॉट ए मैन इन माई लाइफ एंड who was ready to take me कि नहीं डांस आप चलिए, और वो आज तक चल रहा है. Those days in 70s and early 80s नॉर्थ में I don't know still there is a problem about to आर्ट को, और वो देखने का नजरिया भी उस जमाने में बहुत खराब था डांस को देखने का, जो कि आपके महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र में नहीं है. महाराष्ट्र में आर्ट को और आर्टिस्ट को बहुत मान दिया जाता है. उमा जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम साउथ जाते थे तो हम बड़े खुले तरीके से बताते थे, हम कलाकार हैं, हमें बहुत लोग ग्रीट करते थे, लेकिन हम कभी भी अपने यूपी में साइड में जाते थे तो नहीं बताते थे. एक बार चुनार में मुझे याद है कि हम लोग कार्यक्रम के लिए गए थे यहाँ पे, तो यहाँ मिर्जापुर से चुनार, मिर्जापुर में बहुत बड़े कार्यक्रम होता था, तो क्या था गंगा किनारे थे, तो गंगा किनारे किसी ने हमसे पूछा आप कौन है, वो उस दिन कुछ होता है पुत्र के लिए रखते हैं, गोई आठ है क्या बोलते हैं, तो हमने बोला कि गुरुजी को बताया हमारे अंकल हैं और जो म्यूजिशियन थे, हमने कहा हमारे नेफ्यू वगैरह हैं साथ में आए हैं, तो कहते हैं आप जहाँ ठहरे ना जय हिंद होटल में, उसके पास ही हमारा वो है. सारे शहर को पता चल गया था कि हम लोग आए, छोटा शहर था, और 1 हफ्ते रहने के बाद 70 रुपए बिल बना था उस होटल का खाने के साथ. उस समय की बात बता रही हूँ. तो फिर वो मुझसे बाद में शाम को आके बोलती है देखिए आप इतने बड़े कलाकार हैं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं. तो मैंने कहा अरे भैया इनको कैसे पता चल गया, हम तो छुपा रहे थे कि हम आर्टिस्ट है, उसे क्या बताऊंगी कि ये म्यूजिशियन मुस्लिम है तो ये कौन है, मेरे गुरुजी के बारे में क्या बताऊंगी. तो मैंने कहा ये हमारे अंकल है, हम ऐसे घूमने, कहते आपकी मम्मी साथ में नहीं आई, हमने बोला नहीं. तो फिर बाद में पता चला वो ठाकुर एंड सन्स जो पत्थर का काम करते हैं वो थे, और उन्होंने गृह शोभा के पहले इशू में पढ़ा था. तो उमा जी बिल्कुल सही बात बता रही हैं, बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं होती थी, हम लोग छुपाते थे इस बात को. प्लीज कंटिन्यू. कभी भी नहीं है. जैसे आप, मैं वैसे बताना चाहती हूँ, इन जर्नल मैंने दिल्ली में, पंजाब में, किसी भी साइड में आज तक ऑन टिकट शो नहीं देखा. सब फ्री में घुस जाओ, अगर टिकट शो होगा तो हॉल में 5 लोग बैठे होंगे. एंड वी ऑल नो शमा जी एंड रेखा जी एंड अदिति, वी आर वेरी फॉर्चुनेट. हमारे महाराष्ट्र में टिकटेड शो होते हैं, अगर अच्छा शो है, अच्छा आर्टिस्ट है, हाउसफुल भी होता है टिकटेड शो पे. And the respect to the art and to the art form in Maharashtra is tremendous, even in the South also. But दिल्ली में मैंने जो वक्त देखा, तो मैं हमेशा लाइफ में कहती हूँ the best decision of my life was that I take this decision, I will go out of Delhi to get married. Okay. जो कि अपने गुरु को छोड़ के आना, अपने माता पिता को छोड़ के आना, अपने फ्रेंड्स को छोड़ के आना, it was very tough for me, but I think that was the best decision I took in my life. I came to Maharashtra and I owe everything to Maharashtra. Today, if there is a name of Uma Dogra, is only because of Maharashtra. This city made me. Because this city has a respect for a hardworking people first. They respect the people who are hardworking, then money flows. Then money flows, you know. आप इस मैं आज बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि मैं शायद कथक केंद्र के डायरेक्टर से भी ज्यादा कमाती हूँ. ब्लंटली मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि ये शहर आपकी बहुत काम की इज्जत करता है. यस, थैंक यू सो मच उमा दीदी, रेखा ताई. मेरा नेक्स्ट सवाल है शमा ताई, अगर आप इसका मुझे जवाब, मतलब हम सबको अगर इस चीज का जवाब दे सके कि गुरु शिष्य परंपरा, एक्चुअली जब फर्स्ट क्वेश्चन था तब उसमें काफी कुछ कवर हुआ, बट मैंने बताया हाँ जी, बट गुरु शिष्य परंपरा का जो मूल्य है वो आगे की पीढ़ी को कैसे उन्होंने वो मूल्य संभाल के रखना है, और गुरु शिष्य परंपरा और रियाज, ये दोनों का कितना मतलब हाउ दे गो टुगेदर. तो आप इन फ्यूचर के लिए, आई थिंक दे आर एब्सोल्युटली टुगेदर. फर्स्ट ऑफ ऑल, गुरु के सामने पहले तो यही होता था कि गुरु के सामने आप जो भी सीखा हुआ था गुरु के सामने ही आप रियाज करते थे.
ये नहीं होता था कि मैं घर से करके आती हूँ, ये कभी नहीं होता था। मोहन राव जी कहते थे 108 बार गुरु के सामने एक चीज करो। तो और वो देखे, कभी कभी वो देखते थे, कभी नहीं देखते थे, कभी कुछ पढ़ते थे, मगर फिर भी उनका ध्यान तो वहीं रहता था। तो वो मैं दूसरी बात बता रही हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा में मैंने तो नेचुरली गुरु शिष्य परंपरा में ही सीखा है, मगर जिसको शमा जी थोड़ा जोर से बोलिए, कम आ रही है आवाज। गुरु शिष्य परंपरा जिसको आमतौर से बोलते हैं कि गुरु गृह में जाके सीखना, वो तो मैंने नहीं किया। मैं क्लास में ही पढ़ती थी, एज अ हॉबी क्लास में जाती थी सिर्फ हफ्ते में 2 बार। फिर मेरा बढ़ता गया, मेरी रुचि बढ़ती गई। इसका 100% श्रेय मेरे गुरुजी को है। उन्होंने मुझे इसमें वो मैग्नेट तो खींच लेती थी। न तो हम डांस करना ये तय किया, क्योंकि हम एज अ चाइल्ड उमा जी, हम रोहिणी जी जैसे दिखना भी चाहते थे, बाल भी बांधना चाहते थे, हम बोलना भी उनके जैसे चाहते थे, गाना भी चाहते थे। वो हो नहीं पाया, वो अलग बात है, मगर वो खींच लेती थी हमको। तो वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा में सीखा, मगर क्योंकि मैं आमतौर पे जो गुरु शिष्य परंपरा वैसे नहीं सीखा, हमने उनके घर में काम नहीं कभी किया, और हम क्लास में जाते थे और क्लास से ही हमारा सरोकार रहता था। जो मैंने सीखा है गुरु शिष्य परंपरा, हाँ, मगर मैंने नहीं सीखा। और मगर मैं गुरु शिष्य परंपरा इसको इसलिए मानती हूँ कि रोहिणी जी हमारे पूरा जिम्मा लेती थी, नृत्य सिखाने का भी और पूरी लाइफ का भी, वैल्यूज का, सबका। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि ये गुरु शिष्य परंपरा में ही मेरी पूरी पढ़ाई हुई। जैसे पहले भी लोग कह रहे थे हमें करियर लेना मतलब क्या मालूम नहीं था, बस नाच, बहुत सारा ना, बहुत जितना कथक में है उतना सीखना है, उतना मालूम करना है, उतना नाचना है, बस इतना ही था। उस जमाने में परफॉर्मेंस कितने मिलेंगे, कहीं जॉब मिलेगा कि हम अपना क्लास खुद खोलेंगे, ये वाली बातें नहीं थी। अभी है तो भी मैं इतना उससे मुझे दुख नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वजह से अभी डांस बहुत उसका प्रपोर्शन पहले से बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा लोग सीख रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं खुश हूँ इससे। और क्या पूछा था, मैं भूल गई हूँ, सॉरी। या तो नेक्स्ट। नहीं सुनाई दे रहा, आप बोलिए। नहीं, क्या पूछा था? तो वैल्यूज गुरु शिष्य परंपरा और रियाज, ये दोनों कितना पैरेलली जाते हैं, और आज की जनरेशन को गुरु शिष्य परंपरा का मूल कितना रखना चाहिए? मूल्य तो रखना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप गुरु की बात को समझते नहीं और उस वैल्यू से समझते नहीं, उतना गुरु को मानते नहीं, तब तो मुझे लगता नहीं कि कुछ भी बात, क्या कहते हैं, फलती है कहते हैं ना, वो फ्रूटफुल नहीं होता। आप टुकड़ा अच्छा भी कर ले, मगर वो बात नहीं बनती जब तक आप गुरु का ऋण नहीं मानते। तो मैं तो, और हूँ भी पुराने जमाने की, तो मैं तो गुरु ऋण में बहुत विश्वास करती हूँ। आई थिंक हमारी जनरेशन सब लोग और ऋणी है। मगर उमा जी, मुझे लगता है कि कोई फ्यू एक्सेप्शंस छोड़े तो आज के बच्चे भी गुरु के साथ जुड़े हुए रहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से, प्यार से रहते हैं। मुझे हार्डशिप्स के अलावा भी लाइफ हैज चेंज्ड, इट इज वेरी बिजी, उसके बावजूद भी they are connected with the guru. It is hats off to them. Hats off to them, because they know this thing कि वो बुकिश नॉलेज नहीं है, हमें उनसे ही डायरेक्ट लेना है। ये उनके अनुभव में जब सानिध्य में उतरा, तो कि उन्हें जो संघर्ष करना है वो गुरु के सानिध्य के बिना नहीं हो सकता है, ये उनके अंदर अनुभूति है। तो पेरेंट्स लोग कई बार इस बात को बुरा भी मान जाते हैं कि वो ज्यादा, अच्छा पेरेंट्स का छोड़ी, जब मैं, सॉरी टू इंटरफियर,
मैं कॉलेज में थी ना, हमेशा स्टूडेंट वो टीचर्स बोलते थे आपको हम इतना पढ़ाते हैं, आप हमारे साथ इतने घंटे रहते हो, लेकिन द थिंग विच यू गिव द रिस्पेक्ट टू योर गुरु वी डोंट गेट इट। आई सेड बिकॉज you get that knowledge from the book, we also get the knowledge from the book, it's only you deliver us through your dialogue। बट गुरु जी का जो अनुभव है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, और जब हम नृत्य करते हैं तो उनकी आत्मा, अभी मैं किसी भी गुरु को देखती हूँ, वो छोटे उसका हो बड़े का, पूरी आत्मा लगी रहती है कि ये उतर के आए। जबकि पढ़ाने वाला आपके साथ चला जाता है तो आप एग्जाम दे के आ जाते हो, और एग्जाम में भी कई बार मैंने देखा वो चाकू गाड़ के भी, यहाँ हरियाणा वगैरह में लोग बैठे होते थे लॉन्ग बैक, तो भी वो नकल करके कर लेते थे। लेकिन हमारे मन में हम गुरु के प्रति एक गलत भावना भी रख लें, उनके जाने के बावजूद भी, उनके नहीं होने के बावजूद भी, तो हमारे काम में फर्क आता है, हम बिल्कुल ताल से अलग हो जाता है। क्योंकि आई डोंट नो, जिससे कनेक्शन, जैसे आप प्लग आउट करें और प्लग इन करें, वही सिर्फ एक पॉइंट है, उसमें प्लग करेंगे तो आपका इंस्ट्रूमेंट बजने लगेगा, आप प्लग आउट करोगे तो वो चला जाएगा। ये एक निराकार जो कनेक्टिविटी है, ये जो सानिध्य में रहता है वो अनुभव करता है, और मेरे ख्याल आप सब लोगों ने इसको अनुभव किया होगा बहुत खरी तरीके से। मैं सिर्फ एक लास्ट बात करना चाह रही थी कि मुझे एक थोड़ी सी चीज आजकल की नहीं रास आती, वो मुझे लगता है कि ऐसे एक जमाने में आप सब लोग मुझसे जरूर सहमत होंगे कि गुरु के सानिध्य, गुरु के शिष्य गुरु, फिर उस गुरु के शिष्य भी गुरु, फिर उस गुरु के शिष्य भी गुरु, मतलब ऐसे 4-4 पीढ़ियां सब कान पकड़ के कह रहे हैं। हमें थोड़ा सा लगता है कि नहीं, गुरु तो गुरु होते हैं, बाकी सब अभी उनको क्या कहा जाए ये मुझे नहीं मालूम, मुझे अभी तक मिला नहीं है ऐसे। मगर थोड़ा सा ये गुरु पद जो है इतना सस्ता नहीं होना चाहिए, गुरु पद तो गुरु पद होता है। तो ये थोड़ा सा मैं सोचती हूँ, 4 पीढ़ियां हमारे गुरु, तो मुझे थोड़ा सा मैं पुराने किस्म की इसमें ख्याल रखती हूँ इस मामले। हाँ, यू आर वेरी राइट। मुझे ऐसा लगता है कहीं पे हमारे वेकैबुलरी में कुछ शब्द नहीं है जो कि डिफाइन कर सकें, इसलिए मुझे मतलब अदरवाइज जैसे मेरे गुरु जी हैं, मेरे स्टूडेंट्स सब उनको दादा गुरु बुलाते हैं, मेरे को गुरु नहीं बुलाते। आई हैव नेवर, दे ओनली कॉल्ड मी उमा दीदी। सो फॉर मी इट इज वेरी क्लियर, गुरु वाज ही। जो भी मेरे जरिए निकला है वो उन्हीं का दिया हुआ था, जिससे मैंने 5 चीजों को 50 में कन्वर्ट किया। पर स्तोत्र कहाँ था? वो वहीं था। सो ऑफ कोर्स मेरे को भी आपकी तरह एक जिज्ञासा है, और ये कमी है हमारे कहीं पे वेकैबुलरी में कि देयर शुड बी सम अदर वर्ड फॉर द टीचर, रिस्पेक्टेबल फॉर टीचर। और गुरु और आचार्य, इनमें बहुत फर्क है। तो हर कोई गुरु नहीं हो सकता, और आचार्य बहुत हो सकते हैं। आचार्य, शमा जी भी आचार्य हैं, नलिनी कमली जी या रेखा जी, हम सब लोग आचार्य हो सकते हैं। गुरु की पदवी बड़ी अलग होती है, बड़ी पवित्र होती है, और वो बड़ी ऐसी चीज है जो कि आपके अंदर तक उतरती है, और पीढ़ी और आपके मरने तक वो रहती है आपके साथ। मेरे साथ ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो चले जाते हैं, याद भी नहीं करते हैं, क्योंकि शायद वो कनेक्शन वैसा नहीं है। कनेक्शन एक ऐसे आचार्य का ही है। जैसे अभी हमें अपने कॉलेज की टीचर्स के सबके नाम याद है? नहीं याद है। कुछ के याद है जो आपकी जिंदगी पे असर कर गए, जो आपकी रूह को छू गए, वही टीचर्स के नाम याद रहते हैं, बाकियों के नहीं रहते। बट गुरु का एक ऐसा नाम है जो आपके अंत तक उतर जाता है, अंतर मन तक आपकी रूह को छू जाता है, तो वो गुरु है। वो साक्षात गुरु है। सबसे बड़ी बात है, आप जिक्र नहीं भी करिए तो आपका काम बता देता है कि वो आप फलाने के शिष्य हैं, है ना, क्योंकि आपने उनकी छवि को अपने अंदर उतारा है। और ये जो उतारने वाली बात है ना, ये कनेक्टिविटी होती है ना, ये बहुत कम होती है। बिजली कड़कती है लेकिन गिरती वही है जहाँ अट्रैक्शन होता है। तो यही वाली बात है, हृदय से हृदय का छू जाना। गुरु, मेरे समय में भी कितने लोग आए, कितने नृत्य कर रहे, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कितने लोग आ जाते, वो मुड़के ही नहीं देखते। अच्छा, उनके पेरेंट्स को भी ये दुख नहीं होता कि इन्होंने कितने मुश्किल से इसको तराशा है ना। उनके लिए सिर्फ होता है कि जैसे एकेडमिक्स में आप गए, नहीं अब तो वो तो थोड़ा ऑफ ले रहे हैं, 2 मंथ का ऑफ,
और ये वाली बात हमारे गले नहीं उतरती है, क्योंकि हम लोग उस जमाने में नहीं जिए। तो कई लोग सोचते हैं हम पुरानी पीढ़ी के बुजुर्ग लोग हैं। मैं जब स्कूल में भी पढ़ती थी ना, पता नहीं भगवान ने क्या किया था, लोग मुझे ना आजी बाई की कैटेगरी में ही डालते थे, क्योंकि मेरा मन अपने अपने साथ के स्टूडेंट्स में नहीं लगता था, क्योंकि विचारों से हम प्रौढ़ हो चुके होते थे। कहाँ गवर्नर से मिल रहे हैं, गुरुजी के साथ जाके बड़े बड़े लोगों में, प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों में बैठ रहे स्कूल लेवल से, और वो लोग सिर्फ उसी छोटी वाली कैटेगरी में लगे। तो जो मानसिकता से हमें वो एक प्रौढ़ कर देते हैं गुरु ना, बड़ी दिशा दे देते हैं। तो हमें जीवन की छोटी छोटी चीजें, जैसे कई लोग मोबाइल पे ही वो करते हैं कि इतना बड़ा होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। हम सोचते हैं हमारा कॉस्ट्यूम, हमारा मेकअप, हमारा स्टेज सब परफेक्ट होना चाहिए, बाकी आम जिंदगी में हम कैसे भी हो चल जाता है ना। तो ये वाली मानसिकता जो डेवलप हुई है वो आजकल के बच्चों में नहीं है, और उसको डेवलप करने के लिए मुझे हम लोगों को सोचना पड़ेगा कैसे डेवलप करें करके ये चीज को। ये एक बहुत ऐसा विषय जिसपे अलग से हम सब लोगों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए, कि किस तरह से, या क्या हमारे में कमी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को उस तरह से नहीं जोड़ सके। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कमी हम में है। जैसे गुरु ने, मेरे गुरुजी ने मेरे को अपने आप से इतना कनेक्ट कर दिया, आपके गुरुजी ने, शर्मा जी, वो हमारे साथ ऐसे क्यों नहीं कनेक्ट हुए? फ्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू, देयर आर मेनी। अगर मैं कह दूं ये रात है तो वो कहेंगे ये रात है। उसके लिए सबसे बड़ी बात, उसके लिए जी सही, उसके लिए सबसे बड़ी बात थी कि हम वक्त देते थे। हम, इन लोगों के पास वक्त नहीं है, उसी 1-1.5 घंटे में या 2 घंटे, 1-1.25 घंटे में, वो भी वीक में 3 दिन है या पूरे वीक में, उनको थ्योरी भी चाहिए, परफॉर्मेंस की टेक्निक्स भी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ नलिनी जी, आप मतलब हम भी उसी, मैं ये नहीं कहूंगी कि आज की जनरेशन बहुत पढ़ी लिखी, हम पढ़े लिखे नहीं है। मैंने भी अपने टाइम पे जब पढ़ाई किया, स्कॉलरशिप पे पढ़ाई किया, आई वाज वेरी गुड इन माय एकेडमिक्स, बट स्कूल से आते आते रास्ते में ही सारा आधा काम करते करते आना। सही जो कमलनी जी अभी बोल रही थी ना, हाँ, जो एफर्ट्स हैं वो, उसकी कमी है आज। हम लोग ना ओरिएंटेड थे कि हमें, हमारे अंदर, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, ईश्वर सोच के भेजता है किसको कैसे करना है, वो तो बात अलग है। लेकिन उस सोच को बनाने के लिए भी ना एक सानिध्य चाहिए होता है, और हम उनको सुनते थे, और हमने किसी चीज में जल्दबाजी नहीं करी उस पैसेज ऑफ टाइम में, और कमिटेड थे। आजकल के बच्चे भी कमिटेड है, लेकिन वो बहुत सी चीज में कमिटेड है। स्विमिंग भी करना है, अपना कुछ और क्लासेस भी ज्वाइन करना है, फिर कुछ पियानो भी बजाना सीखना है, फिर डांस भी करना है। इतनी मल्टी फेसेड चीजों में जब आप इन्वॉल्व हो जाते, जबकि सुविधा आजकल ज्यादा है। हमारे समय में सुविधा कहाँ होती थी, टेप रिकॉर्डर भी नहीं होता था कि हम कहीं पे लेके बजाएं, और कभी ले भी जाते थे तो कभी टेप नहीं चलता था, और कभी रिकॉर्डर ही वो अजीब आवाज करने लगता। तो जितनी सुविधाएं मिलती गई, उतने हम अपने शरीर को कष्ट देना भूल गए। पहले तो हम सारा कुछ कष्ट देके ही सीखते थे ना कि ऐसा हो जाए। और कई बार तो यू विल नॉट बिलीव, मेरे आरके पुरम से करोल बाग कितने, तो हम तो पैदल ही चले जाते थे गुरुजी के पास, क्योंकि बस में चढ़ना अच्छा नहीं लगता था, और गाड़ी मिलेगी तो उसके साथ एक व्यक्ति मिलेगा जो हमसे थोड़े समय बाद हमें वापस ले आएगा। तो हम इतने मील भी पैदल चले जाते थे। और कभी एक बार तो ऐसा हुआ, बस का पास भी गिर गया, तो हम लोग रात को सर्दी के समय 11 बजे, वो आपको तो शंकर रोड पता होगी कितनी शांत रहती थी, और हम दोनों कैसे स्कूल के बस्ते उठा के और आए हैं, और भगवान जाने कैसे साबित घर में पहुंच गए जाके, और हमने ये भी नहीं बताया कि हम इस कष्ट से गुजरे हैं, और नेक्स्ट डे फिर गुरुजी के पास चले गए। तो हम ऐसे, तो ऐसा है कि बहुत सी कठिनाई होती थी। कई बार किसी ने कुछ कह दिया रास्ते में, तो भी हम नहीं बताते थे कि कल को पापा बोल देंगे कि ऐसा होता है तो तुम मत जाओ। तो हम हमारी बुद्धि जो थी वो हमारे भाग्य से इतनी जुड़ गई थी कि हम सोचते नहीं थे उसमें कुछ बुराई है। जो कष्ट आते थे उसको भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते थे। यस अदिति जी कह रहे हैं। नहीं तो मैं ये कह रही थी कि अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ ये क्वेश्चन का मतलब एक्सप्लेनेशन, जो मतलब मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन है आप सब लोग दे, बट ये हमें टेलीकास्ट करना है तो वो टाइम का थोड़ा सा ध्यान रख के। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आज की ये जो डिजिटल स्पेस है वो भविष्य में ऑडिटोरियम की जगह लेगी, और एक कलाकार, एक गुरु के रूप में आप इस परिवर्तन की संपुष्टि कैसे करना चाहेंगे? तो हम ये परिवर्तन रेखा से चालू करते हैं जी। ये जो गतिशील परिवर्तन है
वो उसका तो मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन ये जो डिजिटल सब प्रोग्राम्स चल रहे हैं आज, और हर एक कलाकार को डिजिटल पे ही अपना जो कि कला है वो प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है, यानी जरूरत वो ही है आज। वो तो खत्म होना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने, यानी आप लोगों ने भी जो स्टेज पे, रंगमंच पे प्रोग्राम करने का आनंद लिया है, और जो ऑडियंस और हम में जो कनेक्शन होता है, वो मिसिंग हम लोगों को लगता है। जिन लोगों ने सिर्फ यही, यानी 3-4 साल के बच्चे हैं, उनको तो वो पता नहीं चलेगा, ये लाइफ टाइम यही चलता रहा है, तो क्योंकि उनको वो एक कनेक्टिविटी मालूम ही नहीं। लेकिन रंगमंच पे प्रोग्राम करने का जो आनंद है, उसमें जो एक संतुष्टि है, वो ये डिजिटल प्रोग्राम्स में नहीं है। ये मेरा पक्का है मत। शमा जी आपकी राय छोटे छोटे शब्दों में, जैसे रेखा जी ने कही। अनम्यूट योरसेल्फ शमा जी। मैं छोटे इसमें बोलूंगी, मुझे लगता है कि हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, ये तो रहने वाला, दिस इज गोइंग टू स्टे, ये रहने वाला है। तो हम डांसर्स ने अभी एक नया माध्यम मिल गया, जैसे हमें सोलो करते थे, कोरियोग्राफी मिल गया, उस पर भी हमने काम किया। जैसे हम गुरु शिष्य परंपरा में 1 to 1 सीखते थे, वर्कशॉप में भी हम सीखने लगे, सिखाने लगे। वैसे मैं चाहती हूँ कि ये जो coexistence, I believe in coexistence. I do not at all think कि ये रंगमंच का तो होना ही होना है, वो तो कलाकार की जरूरत है। सिर्फ कलाकार की नहीं, कला की भी जरूरत है, क्योंकि वही वो फूलेगा फलेगा। मगर को एग्जिस्ट होना है, हमें इस माध्यम के साथ भी मित्रता करनी है। कैमरा से हमारा डांस कैसे दिखेगा, ये हम लोगों ने सोचना है, उसको रीडिजाइन करना है, नंबर 1। और नंबर 2, सोलो में मुझे लगता है कि इस माध्यम से शायद सोलो को और बढ़ावा मिलेगा। तो सोलो डांसेस को इस माध्यम से अगर और ज्यादा सोलो, क्योंकि बड़े बड़े फेस्टिवल्स में लोग देख नहीं सकते, ग्रुप लाओ, तो अगर सोलो ज्यादा बढ़ेगा तो मैं खुश रहूंगी। थैंक यू। या मैं भी थोड़े शब्दों में इस बारे में बताऊंगी कि आई रियली लव्ड योर दिस वन, I underline it, coexistence. We have to learn to live in a coexistence. And Shama ji, ये सिर्फ कोविड की वजह से नहीं हुआ है। I was watching it from last 10-15 years. This medium was working. You know, जैसे फिल्मों के प्रोमोज आते थे और फिल्म बाद में आती थी, I have seen many dancers from my Kathak field. उनके छोटे छोटे ग्लिम्स हम जब YouTube पे देखते थे, तो मेरे ही स्टूडेंट्स, मेरी ही बेटी मुझे कहती थी, माँ देखो उन्होंने कितना अच्छा ये बनाया है। So it is not this 2 years. From last many years, this was working. So we have to learn how to make your art form attractive to celebrate. मेरे विचार में just 2 मिनट नलिनी जी, मैं फिनिश करने वाली। At the same time, I still remember one dialogue of my Guruji. He used to say, हमेशा वो कहते थे, 2 चीजें उनकी थी कि आधा प्रोग्राम जो है वो स्टेज के उस तरफ होता है, द ऑडियंस विच इंस्पायर्स यू टू गिव योर बेस्ट। ये उनका कहना बहुत सटीक था और मैंने इसको बहुत महसूस किया। सेकेंडली, जिस दिन उनका प्रोग्राम अच्छा नहीं होता था, उनका आते ही ये डायलॉग होता था, आज की ऑडियंस कूड़ती। सो इट शोज दैट कि ऑडियंस प्लेज ए मेजर रोल in the artist life. Without audience, we are half of it. So I agree, मेरा पलड़ा दोनों तरफ 50-50 है। ठीक है, थैंक यू। यस नलिनी जी, जो को एग्जिस्टेंस की बात करी, वो तो मतलब एक थोपी गई चीज होगी, हमारी इच्छा से वो काम नहीं हुआ है। और जो पेंडेमिक के समय है, ये प्रेजेंटेशन का ही ज्यादा हुआ, नहीं तो साइट्स वगैरह में ही हमको आइटम्स देखने को मिलते थे या फॉरेन स्टूडेंट्स की क्लास लेने को मिलते थे। अभी क्या है, जैसे पेंडेमिक के समय भी जिसको ऑक्सीजन की जरूरत थी उसे वेंटिलेटर मिला, ऑक्सीजन मिली, जिसको जरूरत नहीं थी उसको जरूरत नहीं थी। तो हमको अगर जरूरत है तो हम वैसे चलेंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं, क्योंकि ये हर समय जिंदगी भर रहने वाला नहीं है।
दूसरी जगह चीज मेरा ऐसा मानना है कि जो ट्रेडिशनलिटी है, हम मंदिर में कितने भी बल्ब जला लें, लेकिन एक दीपक जलाना जो उसकी लॉ आती है वो ईश्वर को समर्पित होती है, वो हम ट्रेडिशन को नहीं हटा सकते। और ये लॉ जो है वो दूसरे दीपक को जलाने की एक क्षमता रखती है। जब हम चीज ऑनलाइन या ऐसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो हम एक चीज में बंध जाते हैं, मोस्टली रिकॉर्डेड करते हैं, हमारे पास लाइव म्यूजिशियंस नहीं होते हैं, तो हम बंध जाएंगे। जैसे पंख बांध के कहा ना, तुझे आजाद किया, कतर कर पंख मेरे परवाज ने मुझसे कहा, जा तुझे आजाद किया, अब तुझे आजाद किया। तो उड़ान जो है उसके लिए एक सीमा बंध जाएगी। और जो दूसरी चीज है, हम जो भी काम करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। आप एक लता जी का गाना रिकॉर्ड में सुनिए, उनको दरमुंह सुनिए, सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स होता है, ये तो बहुत बड़ी साइंटिफिक चीजें हैं, इसकी एक बहुत डेप्थ में जाएगी। रोटी देखने से, रोटी खिलाने से और रोटी खाने से, तीनों चीज का एक फर्क है, किससे मन भरता है, किससे आत्मा तृप्त होती है और किससे भूख शांत होती है। तो हमें अपनी तृष्णा को भी, जो आंतरिक तृष्णा है उसको भी तृप्त करना है, और वो तृप्ति तब होती है जब आप म्यूजिशियन के साथ एक माहौल बनता है। इसलिए कमलनी जी जब तक कथक केंद्र में रही, उन्होंने एक चीज का प्रयास किया कि बच्चों को बड़े होने के बाद ही मंच ना मिले तो छोटे से ही मिले, उन्होंने प्रारंभ किया। लेकिन समय को देखते हुए अभी जो ऑनलाइन भी शुरू हुए थे प्रोग्राम, उसमें भी लाइव म्यूजिशियंस रखे गए थे कि स्पिरिट ऑफ द डांसर शुड रिमेन द सेम। तो अगर स्पिरिट लाइव की वो होती है तो वो फिर भी टेलीकास्ट में आती है, पर वही बात हो गया कि स्वाद अपने तृप्ति का है या सिर्फ समाज को एक चीज देने का है। लेकिन जो वातावरण में है उससे तो हम चूक नहीं सकते, उसके साथ ही हमें चलना होगा नाप तोल के। लेकिन जब भी वक्त मिलता है हमें, तो हम कोशिश करें कि हम खुले आकाश में उड़ान उड़ें, और यही शिक्षा हम अपने स्टूडेंट्स को दें। लेकिन इस 75 वर्ष में और कोई चीज बदली हो या ना बदली हो, लेकिन एक समस्या और सोच जो लड़कियों के लिए है अभी भी ये है कि हम इसको नृत्य सीखने के बाद मैं सबको बहुत दुखी होती हूँ देख के, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, क्योंकि उनको परिवार चलाना होता है। क्या हम इसे आजीविका बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? हमें डांसर अच्छे लगते हैं, लेकिन डांसर से मैरिज करना सबको ये लगेगा कि ये लड़का तो नाचता रहता है, इसकी इतनी आमदनी होगी या नहीं होगी, ये हमारे घर का भार उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। किसी तरह से दो कलाकार जुड़ भी जाते हैं तो वही स्ट्रगल करना होता है। और लड़कियों का खासकर ये है, जैसे क्षमा जी बता रही थी अपनी रेखा जी, कि मैं इसको इतने साल 15-16 साल 18 साल 20 साल गुरु के सानिध्य में शिक्षा लेने के बाद, क्या मैं जब स्कूल में जाके इसको सिखाऊंगी तो क्या मुझे सिर्फ कथक ही सिखाने को मिलेगा क्या और वो फॉर्म्स सिखाने को भी मिलेंगे जो मुझे नहीं आते हैं, उनको बटोरना पड़ेगा। फिर शादी होने के बाद मेरा परिवार मुझे इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो लड़कियों की समस्या जहां तक है, महिला नृत्यकार की एक्सेप्टेंस ऑफ द सोसाइटी वही रही है कि अगर वो दूसरों पे सोचती हैं कि मुझे वो जगह, वो प्लेटफॉर्म शादी के बाद या समाज में मिल पाएगा और उस दृष्टि से मिल पाएगा जिस दृष्टि से मैं चाह रही हूँ, मैंने अपना जीवन लगाया है। मुझे लगा सालों में कोई भी चीज नहीं बदली है, और बदले उसके लिए भी पता नहीं क्या क्या प्रयत्न हमने करने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा। दीदी ये डिजिटल स्पेस के इस पे आप कुछ कहना चाहती थी, आप और क्षमाताई, मुझे लगता है आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं। यस, मैं डिजिटल स्पेस की बात कर रही हूँ कि ये इतनी नेसेसिटी हो गई है इस वक्त कि अभी ये 2 साल की बात मैं नहीं कर रही हूँ। आई एम सेइंग दिस इज फ्रॉम लास्ट 5 to 10 years। आज जब ICCR को आपको पैनल में आपको अगर अप्लाई करना पड़ता है या आपको रीडू करना पड़ता है, जी आप वापस से फॉर्म भरिए, व्हाट दे आस्क, योर YouTube लिंक्स। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब कल्चर डिपार्टमेंट ने जब ये कहा कि उमा जी को अगर अपना हाई ग्रेड कराना है, गिव योर YouTube लिंक्स। फ्रॉम वेयर टू गेट YouTube लिंक्स इफ यू आर नॉट डिजिटली updated? No, that is appreciating. वो उस तरीके से I am talking about the performance. आज अगर मैं क्षमा जी का, मैंने अभी पीछे प्रोग्राम देखा था ग्रुप का, मुझे तो लगता है मैं जब क्षमा जी का वो प्रोग्राम देखूंगी तो हर प्रोग्राम क्षमा जी को जाना चाहिए ICCR के थ्रू। व्हाट ए वंडरफुल प्रोग्राम शी डिड ऑनलाइन, जो प्रोग्राम था क्षमा जी अभी आपने जो किया था अपनी लड़कियों के साथ में। सो इस तरह से अब टाइम बदल रहा है, टाइम के साथ चलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जनरेशन को, हमारी जनरेशन तड़पती रहेगी इस दुख को लेके कि लाइव म्यूजिक, स्टेज, ऑडियंस, बट ये दिमाग में लेकर चलना ही पड़ेगा नेक्स्ट जनरेशन को कि यू हैव टू बी डिजिटली अपडेटेड।
Yes. You have to give your best on that small screen so that people can see you. People, किसको कितनी स्टेज मिलेंगी बताइए? अभी 5 से 10 साल लग जाएंगे टू कम टू द नॉर्मलिटी. अभी कोविड गया नहीं कि अफगानिस्तान की लड़ाई होगी, वापस से औरतें, लेडीज आर ऑन द सेम ट्रैक. आज अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए औरत को कितनी मुश्किल है. इसलिए बेस्ट वे है अपने बच्चों को ये सिखाया जाए कि आपको किस तरह से इसको यूज करना है. जी शमाताई, आप थोड़ा सा फॉर्म की बात करना चाहती हूँ. प्रैक्टिकल बातें तो हो गई एंड आई एग्री विथ यू उमा जी, मगर मुझे लगता है कि डांस को हमने, मतलब कलाकारों ने, आप, मैं, जो भी, हमने हमेशा सामने से ही देखा है. तो अभी बिकॉज वी हैव दिस, हम पीछे से ऊपर से सबसे देखे, हमारा कथक और निखर आए और इस वजह से जगह जगह पूरी दुनिया में पहुंच जाए, क्योंकि उनके साथ फिर कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्म में तो इतनी क्षमता है. हमने देखा नहीं क्योंकि हम हमेशा स्टेज का ही सोचते रहे. अगर अभी हमारे पास और एक डायमेंशन है कि पीछे से देखे, साइड से देखे. कुमार जी कहते थे मैं अपना गाना प्रोफाइल में देखता हूँ. तो हमारा तो डांस है, हम सब तरफ से देखे उसको. और मैं इसको छोड़ के, ये बिल्कुल नलिनी जी नहीं कह रही हूँ, इसलिए मैं को एग्जिस्ट कह रही हूँ. जो रंगमंच की बात है उसका तो जवाब नहीं, वो तो सब मानते हैं. मगर और एक हमारे कथक के लिए और एक नया आयाम मिल गया और एक नया रास्ता खुल गया. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि को एग्जिस्टेंस और दोनों चीज होनी चाहिए. दोनों चीज मैं लेके हमेशा कोरियोग्राफी के साथ भी रही, सोलो के साथ भी रही. वैसे मैं रंगमंच के साथ हूँ और डिजिटल स्पेस के साथ भी हूँ. थैंक यू सो मच. आप सबका बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया. आप सबने आपके मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी इसमें. जी कि जो हम बेसिक्स को भी रखें और जो बदलाव है उसके साथ भी रहें. जैसे शमा जी, उमा जी, रेखा जी ने बोला, पूरा नहीं बोलूंगी, सिर्फ 2 लाइन बोलूंगी. जड़ तना शाख सब वैसे के वैसे ही रहे. जड़ तना शाख सब वैसे के वैसे रहे. मौसम के साथ पत्तों का रंग बदलता चला गया. साथ जो तुम्हारा था तो लम्हों का पता ना चला. वक्त जो गुजरता ही चला गया. तो हम लोग तो एक साथ बैलेंस करके चलेंगे, जरूर चलेंगे. पर फिर भी अगर आपको बहुत भूख है, तृष्णा है, और आपको क्या कहते हैं, एक कैप्सूल खिला दी जाए जिसमें पूरे विटामिन है, तो आत्मा तृप्त नहीं होती. हमें पची हुई थाली ही चाहिए आत्मा को तृप्त करने के लिए. तो विटामिन की कैप्सूल भी चलेगी, लेकिन हमें परसी हुई थाली चाहिए जो हमारी आत्मा को शांत कर सके, आनंद दे सके. और वो दीपक की लौ भी चाहिए जो निरंतर जलती रहे और दूसरे को प्रकाशमान भी करे, अंधकार को भी दूर करे, और दूसरों को जला के एक दिए से दूसरे दिए को जलाने की क्षमता रखे, और ये परंपरा चलती रहे. सही में. थैंक यू वेरी मच अदिति. आई वांट टू थैंक यू फॉर इसी बहाने हम सब लोग एक दूसरे को मिल सके, एक दूसरे के साथ हम लोग डिस्कस कर सके, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके. थैंक यू वेरी मच. शमा जी, रेखा जी, अमलनी जी, नलिनी जी, अब कहाँ गई दूसरी पार्टनर, समझ में नहीं आ रहा. अमलनी जी को ना दूसरे उसमें जाना था, इसलिए वो चली गई, बोल के गई है मुझे. और आपने जन्माष्टमी में अदिति सबको जोड़ा, तो कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. सबको थैंक यू, और आपके फेस्टिवल को बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. कुछ अदिति समय को एक-एक कृष्ण के रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रोग्राम का कंक्लूडिंग करे. शुभलक्ष्मी. यस, शुभलक्ष्मी प्लीज. क्या सुंदर नाम है. वो उसका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है. चलिए आप ही कर दीजिए फिनिश. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. मैं आप सभी गुरुजनों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. आपने आपके बिजी स्केड्यूल में इस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट किया. आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमेशा हमारे साथ हो, बस यही कामना करती हूँ. थैंक यू. यही से कृष्ण. जय हिंद. थैंक यू. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद.